Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss process to compel production of things before the court of law. Whenever any document or anything is required before the court of law, court can issue a summons to the person in whose possession that particular goods, that particular thing or that particular document is there. So what exactly the procedure is there, we will discuss under this particular lecture. So first part we will discuss कि कोर्ट कब किसी पर्सन को कंपेल कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, उसका प्रोसीजर क्या है, ये फर्स्ट पार्ट आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दैट इज सेक्शन 91 टू सेक्शन 93 आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. इसके साथ ही साथ हम इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Process to compel production of things under Criminal Procedure Code. So section 91 deals with summons to produce document or other things. Section 91. So any document of thing is required before the court or police officer, such court can issue summons or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be requiring him to attain and produce it. So whenever anything is required, any document is required before the court of law and in any police station, under such a circumstances a magistrate and court is having a power to issue a summons to that person in whose possession that document is there, and the police officer is having a power to issue a notice to such a person in whose possession the document is there, requiring him to attain and produce it. जब कभी भी किसी डॉक्यूमेंट की या किसी चीज की कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़ती है तो कोर्ट उस पर्सन के अगेंस्ट में जिसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट या चीज है समन्स इशू करेगा और उसको कहेगा कि वो डॉक्यूमेंट या चीज कोर्ट में पेश करे. पुलिस स्टेशन में जरूरी है तो पुलिस ऑफिसर नोटिस इशू करेगा. पुलिस ऑफिसर समन्स इशू नहीं कर सकता है, नोटिस इशू करेगा कि ये चीज की हमको जरूरत है, यू हैव टू प्रोड्यूस इट, आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा. Mere production of document or thing is sufficient for compliance of this section. If the person in whose possession the document or thing is there, if he merely produce that thing or document before the court of law, it is sufficient for compliance of this section. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि कोर्ट ने किसी पर्सन को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा. अब वो कोर्ट खुद आकर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया बल्कि किसी के साथ वो डॉक्यूमेंट भेज दिया, कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गया, सफिशिएंट, ये कंप्लायंस हो गया सेक्शन 91 का. पर्सन को खुद डॉक्यूमेंट आके प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट में डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो पर्सन की जरूरत नहीं है. डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गया, सफिशिएंट. So nothing in this section shall be deemed to affect any section 123 and 124 of Indian Evidence Act 1872 or the Bankers Book Evidence Act 1891 to apply to a letter, postcard, telegram or other document or any parcel thing in the custody of the postal or telegraph authority. तो ये जो सेक्शन है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है, तो ये सेक्शन 123 और 124 इंडियन एविडेंस एक्ट के या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा. वो प्रोविजन एज इट इज रहेंगे. दिस सेक्शन to apply to a letter, postcard, telegram or other document or any parcel or thing in the custody of postal or telegraph authority. तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और डॉक्यूमेंट या पार्सल जो टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजीशन में है, उनको ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा. उनको दूसरा सेक्शन अप्लीकेबल होगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सेक्शन 91 पे पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में. Section 91 of the Code of Criminal Procedure 19(3) does not apply to the complainant, the witness, the accused, a person who is neither a complainant or accused or a witness. अगर हम देखें तो यहाँ स्पेसिफिकली सेक्शन ने ये कहा कि to the person in whose possession or power such document or thing is there.
ये किसको अप्लीकेबल है? जिस किसी के भी पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट या चीज है उसको अप्लीकेबल है। तो ये किसको अप्लीकेबल नहीं होगा? अ पर्सन हु इज नाइदर अ कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड और अ विटनेस। ऐसे पर्सन को सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होगा जो ना के कंप्लेनेंट है, ना तो अक्यूज्ड है, ना तो विटनेस है। इनको अप्लीकेबल नहीं होगा। कंप्लेनेंट को अप्लीकेबल होगा, विटनेस को अप्लीकेबल होगा, अक्यूज को भी अप्लीकेबल होगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है, whenever person received summons to produce document or other things under section 91 of CRPC, he can himself produce the document through some other person. Both of the above are correct, none of the above are correct. तो हमने ये भी देखा एक्सप्लेनेशन में कि mere production of document or thing is sufficient or compliance of this section, कि सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया सफिशिएंट है, पर्सन की प्रेजेंसी जरूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। ही कैन हिमसेल्फ प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट, वो खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है, एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट थ्रू सम अदर पर्सन, वो दूसरे पर्सन के जरिए भी डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है। तो बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 92 डील्स विद प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अब लेटर्स और टेलीग्राम से रिलेटेड प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर उनकी कोर्ट में जरूरत है तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में ऑर्डर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन देयर कस्टडी। सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज हैविंग अ पावर, chief judicial magistrate is having a power, court of session and high court is having a power to order a postal or telegraph authority to produce any document, parcel or thing in their custody. अगर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में अगर कोई चीज है, कोई पार्सल है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट उनको ऑर्डर दे सकता है कि यू हैव टू प्रोड्यूस दीज पर्टिकुलर थिंग्स बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कोर्ट में ये आपको ये चीजें प्रोड्यूस करना है, तो ये ऑर्डर कर सकता है। सच जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस may require the postal or telegraph authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1. अब क्या होगा? सच जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर और एसपी, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस may require the postal or telegraph authority to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1. For example, subsection 1 में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने, सीजेएम ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने, हाई कोर्ट ने पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी को ऑर्डर किया कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, और वो पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी अगर प्रोड्यूस नहीं करती है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ये उस प्लेस को, उस पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के प्लेस को सर्च करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। सेक्शन 92 का प्रोबेबल क्वेश्चन है, Which of the following court is having no power to issue an order against postal and telegraph authority under section 92 of CRPC? District magistrate, judicial magistrate first class, session court, chief judicial magistrate. तो कौन सी अथॉरिटी को ऑर्डर पास करने का सेक्शन 92 में पावर नहीं है? तो हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को है, कोर्ट ऑफ सेशन को भी है। तो यहाँ पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर पास नहीं कर सकता पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। अब जो सेक्शन 93 है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, सर्च वारंट कब इशू कर सकते हैं? So where any court has reason to believe that a person to whom a summons or order under section 91 or requisition under section 1 of section 92 has been or might be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition. क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने सेक्शन 91 में वो पर्सन को समन्स भेजा जिस पर्सन के पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग है, या पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को रिक्विजिशन भेजा कि हमको ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पोजीशन में है। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऐसा कोर्ट को लगता है, या उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया, इस सिचुएशन में क्या होगा?
where such document or thing is not known to the court to the possession of any person। और अगर कोर्ट को ये पता नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में रिक्वायर्ड है वो किसके पोजेशन में है, अगर ये पता नहीं है तो where the court consider that the purpose of any inquiry, trial or other proceeding under this code will be served by a general search or inspection। और कोर्ट को ये लगे कि ये जो कोर्ट की जो इंक्वायरी है या ट्रायल है ये आगे तभी बढ़ेगी अगर जनरल सर्च किया जाए उस डॉक्यूमेंट का, तभी आगे बढ़ सकती है। उस सिचुएशन में क्या होगा, इट में इशू अ सर्च वारंट। कोर्ट क्या करता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। कौन से सिचुएशन में, अगर जिस पर्सन के अगेंस्ट में रिक्विजिशन हुआ था डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का वो प्रोड्यूस नहीं करेगा ऐसा लगा या किया नहीं। दूसरा कि अगर फॉर एग्जांपल किसके पोजीशन में वो डॉक्यूमेंट है कोर्ट को यही पता नहीं है। तीसरा ये कि कोर्ट को ये लगा कि हम इस केस में आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना हो तब तक। ये तीनों सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, सर्च वारंट इशू कर सकता है वो डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए। अब the court may, if it thinks fit, specify in the warrant the particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend। So while issuing a search warrant, the court may mention and may specify in the warrant the particular place or part thereof in which only the search or inspection shall extend। तो वो सर्च वारंट में ही वो स्पेसिफाई करेगा कि कौन से प्रीमाइसेस में कितने एरिया तक ये सर्च कंडक्ट होगा, वो स्पेसिफाई करेगा प्लेस एंड एरिया ऑफ सर्च समझ में ही। एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट शाल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। और जब अगर कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि ये प्रीमाइसेस का ये प्लेस का सर्च होगा तो जो पर्सन भी एग्जीक्यूट करेगा वो सर्च वारंट वो उसी हद तक सर्च कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Only district magistrate or chief judicial magistrate are empowered to grant a warrant to search for a document। डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सीजेएम ही सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा पार्सल और ऐसी चीज जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजीशन में है, उस सिचुएशन में पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के प्रीमाइसेस को अगर सर्च करना है तो वो सर्च वारंट इशू कौन कर सकता है, ओनली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 93 पे, विच कोर्ट इज empowered to issue search warrant against postal and telegraph authority under section 93 of CRPC? Metropolitan Magistrate, Judicial Magistrate First Class, Session Court and Chief Judicial Magistrate। सेक्शन 93 में पोस्टल एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी के अगेंस्ट में चारों में से कौन कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो ऑप्शन में है ही नहीं, सिर्फ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकता इशू, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं कर सकता, सेशन कोर्ट नहीं कर सकता। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर। So these are the particular provision which we have discussed from section 91 to 93. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.